Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Munir High School e-learning system, class 5. This is your science lecture. Today we are going to read and explain unit number 3. Unit number 3 is about classification of living things. This is the title page of your amazing science book for class 5. Unit number 1 topic is classification of living things. All living things are made up of cells. तमाम जानदार cells से बने होते हैं. How we can classify living things? We can arrange everything in the world into 3 groups. हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें जानदार living things मौजूद हैं उनको 3 groups में divide करते हैं. Some things are living now, other were once living and some were never living. कुछ उसमें से अभी तक जानदार हैं, कुछ जानदार थे और कुछ जानदार अब कभी भी नहीं थे. Dividing things into groups helps us to understand how all the different things in the world fit in a pattern. इस तरह से अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दें, उसकी क्लासेस बना लें, उसको समझना, उसके बारे में जानना आसान हो जाता है. How living things have developed? Living things कैसे develop हुए? So here students, we have blue-green algae. Picture of blue-green algae. First living thing organism was bacteria and blue-green algae, and then green algae, then protists, fungi, flatworms, then mussels and other insects are present in this picture, and from it we have amphibian, bony fish, yes, and other living organisms, and on the other hand we have flowering plants, ferns, mosses and red algae. All these are the classification of living things. Scientists who study living things are called biologists. वो लोग, वो साइंसदान जो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उन्हें बायोलॉजिस्ट कहा जाता है. बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. बायोलॉजिस्ट ने और जो बायोलॉजी को और लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उन्होंने तमाम थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. एंड दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. Biologists classify all living things by dividing them into large groups called kingdom. और जो उनके बड़े ग्रुप हैं, बायोलॉजिस्ट ने जिन लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया है बड़े ग्रुप्स में, हम उनको किंगडम कहते हैं. ईच किंगडम इज़ ए ह्यूज ग्रुप. हर किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. The two main kingdoms are those of animals and plants. इनमें से दो सबसे अहम किंगडम एनिमल्स हैं, जिसमें एनिमल्स मौजूद हैं, and other one is the plant, जिसमें तमाम प्लांट्स मौजूद हैं. Biologists already know about more than 1 million different kinds of animals and more than 350,000 kinds of plants. Biologists अब तक 1 million तक डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जान चुके हैं, एंड ऑल्सो दे हैव डिस्कवर्ड 350,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. साइंटिस्ट डिवाइड ईच किंगडम इनटू स्मॉलर ग्रुप. साइंसदान दोबारा से इन किंगडम्स को और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑफ लिविंग थिंग्स विच हैव पर्टिकुलर फीचर्स इन कॉमन, जिनके कुछ आप कह सकते हैं कि फीचर्स खदोखाल एक जैसे हैं, सो दैट दे कैन स्टडी दैम मोर इजीली, ताकि उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें. नंबर 1 इज़ वायरसेस. व्हाट आर द वायरसेस स्टूडेंट्स? वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स. वायरसेस सबसे छोटे और सबसे सादा लिविंग थिंग्स हैं. They can only be seen with the help of an electron microscope. आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको देख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं प्रॉपरली. Viruses are made up of chemicals. Viruses chemicals से बने होते हैं, which are just like those found in your body. उसी तरह के chemicals जैसे chemicals हमारे bodies में मौजूद होते हैं. Some scientists say that viruses are not really alive. कुछ साइंसदान ये कहते हैं कि viruses जिंदा नहीं होते. They can only survive by entering the cells of animals, plants और bacteria. लेकिन ये viruses जब animals, plants और bacteria के living cells में दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं. Once
inside a cell, एक दफ़ा ये सेल के अंदर चले जाएं, the virus uses the cell's material to live and reproduce। तो वायरसेस लिविंग सेल कोई भी एनिमल का है, प्लांट का है, उसको यूज़ करके ज़िंदा भी रहते हैं वायरस और रिप्रोड्यूस भी करते हैं अपने आप को। द वायरस कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, अपने जैसी हज़ारों कॉपीज़ बनाता है। द हेल्दी सेल इज़ टेकन ओवर एंड डिस्ट्रॉयड, इस तरह से जो सेहतमंद सेल होता है, हेल्दी सेल होता है, उसको पूरा टेक ओवर कर लेता है वायरस और उसको डिस्ट्रॉय करता है। विच कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरी इल, जिससे एनिमल्स और प्लांट्स बहुत बीमार हो जाते हैं। वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस, वायरसेस से हमें बीमारियां हो जाती हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कैंसर इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट आवर ग्रुप इज प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट आर स्मॉल लिविंग थिंग्स, ये भी छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं दैट कैन नॉट इजीली बी क्लासिफाइड एज प्लांट्स और एनिमल्स। ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, हम इनको सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको प्रोटिस्ट ग्रुप में रखते हैं। एन अमीबा इज द एग्जाम्पल, पैरामीशियम इज द एग्जाम्पल। हियर वी हैव द पिक्चर्स ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। व्हाट इज अमीबा? इट इज अ सिंगल सेल प्रोटिस्ट, ये एक सेल का बना हुआ होता है दैट लिव्स इन वाटर, जो पानी में रहता है। इट ईट्स बाय रैपिंग इटसेल्फ अराउंड इट्स फूड, ये अपने फूड के इर्द अपने आप को रैप अप करके उसको यूज करता है फूड को। पैरामीशियम इज ए प्रोटिस्ट, पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्ट है दैट इज कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड्स, जो एक बालों की तरह का हेयर लाइक थ्रेड्स की शक्ल में, धागों की शक्ल में होता है और उसको सीलिया बोलते हैं। द सीलिया हेल्प द पैरामीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर, और ये सीलिया और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये पैरामीशियम की हेल्प करता है ताकि ये इजीली मूव कर सके, स्विम कर सके पानी में। Euglena. So students, here we have the picture of Euglena is a strange kind of protist. ये एक अजीबो-गरीब तरह का प्रोटेस्ट है। It can make food using sunlight like plants. ये प्लांट्स की तरह अपनी खुराक खुद बनाता है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है। In the presence of sunlight, it has an eye spot. इसके ऊपर एक आई स्पॉट होता है which helps it to distinguish between light and shade, जिसकी मदद से ये देखता है कि वो शेड है कि लाइट है। इट यूजेस अ लॉन्ग विप लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ए फ्लैजिलम, इसका एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी पे, जिसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। टू मूव अबाउट इन वाटर, जिसकी हेल्प से ये पानी में तैर सकता है, स्विम कर सकता है, मूव कर सकता है। बैक्टीरिया, नेक्स्ट आवर थिंग इज बैक्टीरिया, इसका सिंगुलर है बैक्टीरियम। आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ये भी बहुत छोटा लिविंग थिंग है जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड, कुछ टाइप्स काइंड्स ऐसी हैं बैक्टीरिया की जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन द एयर, ज़्यादा बैक्टीरिया हवा में रहता है। इन वाटर, पानी में, और इन द टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल, और मिट्टी की सॉइल की टॉप लेयर्स में ये रहते हैं। बट देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव ऑन योर स्किन एंड इनसाइड योर माउथ, नोज एंड लंग्स, और मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी स्किन पे, हमारे माउथ में, नोज और लंग्स में रहते हैं। सो हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। These are the pictures of different types of bacteria. Bacteria are surrounded by a thick cell membrane. They occur in various shapes such as round shape, elongated shape or spiral shape. So they have different types of shapes. Some bacteria are useful, कुछ बैक्टीरिया बहुत यूजफुल है। They help to make vitamins, cheese एंड योगर्ट, ये हमारी हेल्प करते हैं विटामिन्स, चीज़ और योगर्ट बनाने में। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह है। दे कॉज डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड फीवर एंड कॉलरा, और इनकी वजह से हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव द प्लांट किंगडम, जिसके अंदर तमाम प्लांट्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स आर कॉल्ड बोटेनिस्ट्स, ऐसे साइंसदान जो सिर्फ प्लांट्स को स्टडी करते हैं उनको बोटेनिक्स कहा जाता है, उसकी स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। हैव डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 4 मेन ग्रुप्स, इन्होंने प्लांट्स को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एल्गी एंड फंजाई। व्हाट इज एल्गी? एल्गी इसका सिंगुलर है एल्जा, यूजुअली लिव इन वाटर, पानी में रहता है। मैनी एल्जाई आर प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर्स ऑफ द वाटर इन सी एंड लेक्स।
क्लोरोकोकम इज अ सिंगल सेल्ड एल्जा। क्लोरोकोकम नेम है सिंगल सेल्ड एल्जा का, जिसमें सिंगल सेल्स होते हैं जो रहते हैं, लिव्स ऑन ट्रीज एंड डैम वॉल्स। क्लेमोडोमोनास इज सिंगल सेल एल्जा। क्लेमोडोमोनास भी सिंगल सेल एल्जा है दैट स्विम्स अबाउट इन वाटर, जो पानी में तैरते हैं। वॉल्वॉक्स इज एन एल्जा दैट लिव्स इन कॉलोनीज। वॉल्वॉक्स ऐसे एल्जा हैं जो कॉलोनीज की शेप में रहते हैं एंड मूव अबाउट फ्रीली। Spirogyra is an alga that does not move at all. Spirogyra ऐसे एल्जियां हैं जो मूव नहीं करते। Seaweeds are also alga. They occur in many different shapes, sizes and colors. So here students, we have the pictures of all these Chlamydomonas, volvox, Spirogyra and seaweeds. Next we have fungi, mold, mushrooms, toad tools and puff balls are all the examples of fungi. ये सब fungi की examples हैं, जिसको हम कहते हैं जी फफूंदी लगी, we call it mold, and these are the mushrooms. Picture of mushrooms. Fungi are plants that are not green. ये ऐसे plants हैं जो सब्ज रंग के नहीं होते. They do not contain the green matter, chlorophyll. इनके अंदर green material जो green plants में मौजूद होता है, chlorophyll वो नहीं होता. Fungi like to grow in dark, damp places. Most fungi feed off dead and rotting plants. Some fungi are parasites. कुछ fungi parasites होते हैं जो दूसरे organisms पे depend करते हैं अपनी food के लिए. This means parasites means they take their food from other living plants or animals, कि वो अपनी खुराक दूसरे living plants और animals से हासिल करते हैं. All fungi are made of thin threads. तमाम fungi बिल्कुल पतले पतले threads की तरह से बने होते हैं. We call it hive. That take in food from the living or decaying things around them. Some skin diseases such as athlete foot, scabies and ringworms are caused by fungi. ये diseases fungi की वजह से होते हैं. Lichens are plants that are created by fungi and algae living together. The fungi need the food that the algae provide and the algae need the fungi in to protect them. Lichens ऐसे plants होते हैं जो बनते हैं fungi और algae के आपस में मिल के रहने से. Lichens are very hardy plants. ये बहुत सख्त प्लांट होते हैं. They can survive the coldest weather. ये बहुत ठंडे मौसम में भी सर्वाइव कर जाते हैं. And the harshest winds by growing close to the ground. Lichens have no leaves. इनमें कोई leaves नहीं होते. Stems और roots भी नहीं होती. They can grow on hard surfaces. ये सख्त surfaces पे grow कर जाते हैं, जैसे कि rocks and walls पे. Lichens grow very slowly and can live for thousands of years. They usually grow in moist conditions. ये नमी वाली conditions में easily grow कर जाते हैं, but they can survive even in the dry heat. लेकिन ये बहुत सख्त अगर खुश्क गर्मी भी हो उसमें भी survive कर जाते हैं. Mosses and liverworts. Mosses grow best in moist. नमी में बहुत अच्छे ये ग्रो करते हैं. शेडी प्लेसेस में जहाँ साया होता है. मोस्ट मोसेस आर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स टॉल, और कुछ मोसेस सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं. दे हैव थिन स्टेम्स. इनकी बहुत पतली पतली स्टेम्स होती हैं. कवर्ड विद टाइनी ग्रीन लीव्स. टाइनी हेयर होल्ड द मॉस डाउन ऑन द ग्राउंड. देयर आर टाइनी पेयर शेप्ड कैप्सूल्स ऑन स्किन on thin stalks above the leaves. Inside the capsules there are spores which can grow into new moss plants. So all these are the characteristics of mosses and liverworts. So here students we have the picture of plants which have mosses on their bodies. Liverworts may be leaf-like. ये पत्तों की तरह का होता है. Mosses और they may be flat and branch. Flat भी हो सकते हैं और branch form में भी हो सकता है. Both forms reproduced by spores formed in capsules. Next we have students ferns. What are the ferns? Ferns are plants that like to grow in damp. Ferns ऐसे plants हैं जो damp areas में grow करना पसंद करते हैं या shady areas में places में. Ferns have tiny tubes inside their stem and leaves. इनके stem और leaves में छोटी छोटी tubes होती हैं. These tubes carry food. ये tubes carry करती हैं food और water को from one part of the plant to another.
So this is the function of the ferns. The leaves of fern plants are called fronds. हम जो पत्ते होते हैं, leaves होते हैं ferns plants के, उनको fronds कहते हैं. Each frond is divided into lots of leaflets. All ferns reproduce by making spores. Fern spores grow in tiny clusters on the underside of the leaflets in special pods called sporangia. और fern spores जो हैं grow करती हैं tiny clusters में on the underside, नीचे की तरफ. जो leaflets हैं इनके underside पे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं और special pods में होते हैं. We call it sporangia. हम इनको sporangia कहते हैं. Each sporangium splits open. हर जो sporangium है वो उससे open होता है, स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है एंड रिलीज द स्पोर्स, और स्पोर्स को रिलीज कर देता है, विच देन फॉल टू द ग्राउंड, जो जमीन पे गिर के दोबारा से न्यू फर्न्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं. सीड बेयरिंग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स खुद से सीड बेयर करते हैं. जिम्नोस्पर्म्स, वी कॉल इट जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स. ये बीज बनाने वाले, सीड्स बनाने वाले प्लांट्स हैं दैट आर नॉन फ्लावरिंग. ये फूल नहीं देते. They have well developed roots, stem and leaves. इनकी बाकायदा से well developed roots, stem, leaves सब कुछ मौजूद होता है. They have fine needle like leaves. इनके जो पत्ते होते हैं, leaves होते हैं, वो needle like होते हैं. They produce seeds in special structures. वो अपने खास structures के अंदर seeds produce करते हैं. We call it cones. For example, here we have the picture of pine trees and their cones. एंजियोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स. ये भी सीड देते हैं और लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स भी होते हैं इसके ऊपर. दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. इनकी भी वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम और लीव्स हैं. दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. हम इनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स. व्हाट आर मोनोकोटिलिडन्स? The floral plant parts are usually arranged in groups or multiples of 3. इसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, एज वी हैव द एग्जांपल ऑफ वीट, राइस, मेज एंड लिली आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकोटिलिडन्स. फ्लोरल पार्ट्स को यूजुअली अरेंज्ड होता है ग्रुप्स में और या मल्टीपल्स ऑफ 3 में. देयर लीव्स हैव वेन्स. इनकी लीव्स के अंदर छोटी छोटी वेन्स होती हैं, रनिंग पैरेलल टू वन अनदर. मोस्ट मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम. इनमें फाइब्रस रूट सिस्टम भी मौजूद होता है. दे प्रोड्यूस सीड विद वन सीड लीफ कोटिलिडन. डाइकोटिलिडन प्लांट्स, द फ्लोरल प्लांट्स, ये भी फ्लोरल प्लांट्स हैं. इनके भी फ्लोरल पार्ट्स मौजूद होते हैं. आर यूजुअली अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ, ये लेकिन ग्रुप कितने ग्रुप में अरेंज होते हैं? 4 और 5 के ग्रुप में. Their leaves have veins arranged in a branch network. Most dicotyledon plants have a tap root system. इनके अंदर tap root system होता है. Students, I told you about different types of root systems. So इसके अंदर tap root system मौजूद होता है. They produce seed with 2 seed leaves, cotyledons. Some common examples of dicotyledon plants are hibiscus, peas, beans, and castor oil plants. Next students, we have the animal group. Animals can be classified into 2 main groups. हम animals को 2 main groups में divide करते हैं, vertebrates and invertebrates. Those animals who have the backbones are called the vertebrates, and invertebrates animals without backbone. Invertebrates, scientists have already named about 1 million different types of invertebrates. साइंसदानों ने अभी तक हमें 1 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताया है. ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं है. फॉर एग्जांपल स्पॉन्जीज आर अंडर वाटर इनवर्टिब्रेट्स. ये पानी के अंदर रहते हैं विद नो हेड्स. इनके कोई हेड नहीं होते हैं, आर्म्स भी नहीं होती और लेग्स भी नहीं होते. दे डू नॉट मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह मूव नहीं करते. दे अटैच देमसेल्व्स टू रॉक्स और प्लांट्स. ये अपने आप को किसी भी रॉक या प्लांट के साथ अटैच कर लेते हैं. They take in water containing lots of tiny plants and animals through small spores, and we call these spores ostia. After the food and oxygen has been observed, the water is pushed out through one large mouth-like hole called osculum. जब भी ये खुराक यूज लेते हैं, आफ्टर द फूड एंड ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं, द वाटर इज पुश्ड आउट थ्रू. और पानी को कहाँ से पुश आउट करते हैं? एक लार्ज इनके माउथ लाइक होल होता है, मुंह की तरह का इनका होल होता है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर, एंड वी कॉल दिस स्ट्रक्चर द ऑस्कुलम.
Coleotrates, jellyfish and corals belong to a group of invertebrates called coleotrates. They have hollow bodies and live in the sea. इनकी बिल्कुल खाली बॉडीज होती हैं और ये समंदर में रहते हैं. जेलीफिश और कॉरल्स जो हैं बिलोंग करते हैं इस ग्रुप के साथ. A jellyfish looks like an umbrella, एक छतरी की तरह, umbrella की तरह नजर आती है, with thin arms, और उसके arms बहुत thin होते हैं. We call these arms tentacles. Corals live in the sea too. Corals भी समंदर में रहते हैं, but they stay in one place all their lives. लेकिन ये एक ही जगह रहते हैं अपनी पूरी जिंदगी. Corals that stretch over large areas are called reefs. Corals जो बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं उनको हम रीफ्स कहते हैं. दे कैन बी वेरी कलरफुल. ये बहुत रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं. ईच रीफ इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल कोरल एनिमल्स. वी कॉल इट पॉलिप्स. ईच टाइनी पॉलिप हैज ए सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज अटैच्ड at one end to the seabed, the reef, or another polyp. At the other end, the polyp's mouth is surrounded by tiny tentacles. Polyps can eat tiny plants or animals. Polyps जो हैं वो बहुत छोटे plants और animals को खाना पसंद करते हैं. और reef जो millions of individual coral animals से मिलके बनता है, we call it polyps. Worms. Next. All worms have soft thin bodies. तमाम worms की बहुत soft, नरम और thin bodies होती हैं with no legs. इनके कोई legs नहीं होते. Some worms live in water, some live on land and other live inside animal, plant and humans. कुछ worms पानी में, कुछ ज़मीन पे और कुछ animals और plants की और humans की bodies के अंदर रहते हैं. Some ribbon worms live in the sea. कुछ ribbon worms होते हैं जो समंदर में रहते हैं. The bodies of earthworm and leeches are divided into leeches और earthworm की bodies divided होती हैं different sections में. We call it segments, जिनको हम segments बोलते हैं. Most leeches live in water. ज़्यादा leeches पानी में रहते हैं. They have a flat body. इनकी बिल्कुल flat सीधी body है with a sucker at one end और इसके एक end में उनका mouth like structure होता है. We call it sucker. They use the front sucker to feed on the blood of fish and other animals. जो फ्रंट पार्ट होता है सकर का, इनका बॉडी स्ट्रक्चर का, ये उसके थ्रू फीड करते हैं, ब्लड सक करते हैं दूसरे फिश और एनिमल्स का दैट लिव इन द वाटर, जो पानी में रहते हैं. फ्लैट वर्म्स लुक लाइक ovoid leaves or long ribbons. Tapeworms and slugs live inside the human bodies where they can use serious illness. Kynoderms. What are the kynoderms? These are the starfish, sea urines and sea cucumbers are invertebrates. ये भी invertebrates हैं that live in the sea, जो समंदर में रहते हैं. They are called echinoderms. इनको हम echinoderms कहते हैं because क्योंकि they have spiny skin. उनकी spiny skin होती है, उनके skin के ऊपर spines मौजूद होती हैं. The arms of a starfish are covered with hundreds of tiny tubes called the tube feet. जो आर्म्स होते हैं स्टारफिश की, उसको बहुत सारी टाइनी ट्यूब्स ने कवर किया होते हैं जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं. द ट्यूब फीट हेल्प्स द स्टारफिश टू मूव अबाउट एंड ऑल्सो टू स्टिक टू रॉक्स और शेल्स. They also help the starfish to pull apart the shells and cockles and oysters in order to eat the soft flesh inside. Starfish use their tube feet to take in oxygen from seawater. Molluscus. Mollusk is an invertebrate. ये भी mollusk भी एक invertebrate है with a soft body and no bones. इसकी भी कोई bones नहीं होती body में और soft body होती है. Most molluscs have a hard shell on the outer side to protect their soft body. अपनी soft body को बचाने के लिए इनके ऊपर एक hard shell मौजूद होता है. Some molluscs such as cuttlefish and squid have a shell that grows inside their body. The octopus is a mollusk that has no shell at all. Some molluscs live in water and others live on land. Arthropods, beetles, butterflies, crabs and spiders belong to a large group of invertebrates. Butterflies, spiders, crabs, ये भी सारे invertebrates होते हैं, इनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती और हमें इनको एक लार्ज ग्रुप में जिसको एर्थ्रोपॉड्स कहा जाता है उसमें हम इसको कंटेन करते हैं.
आर्थ्रोपोड्स आर एनिमल्स दैट हैव जॉइंट फीट, ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जॉइंटेड फीट्स हैं। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेक्शंस, इनकी बॉडीज जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं अलग अलग सेक्शंस में विद ए हार्ड आउटर कवरिंग, जिसके ऊपर उनकी हार्ड आउटर कवरिंग होती है। वी कॉल इट एक्सोस्केलेटन, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। Centipedes and millipedes are also arthropods. Their bodies are divided into segments. Each segment has either one or two pair of legs. Spiders and scorpions are a type of arthropod called arachnids. All arachnids have 8 legs. जितने भी arachnids होते हैं उनकी 8 legs होती हैं। Insects such as butterfly, bees, cockroaches have 6 legs. Crabs, lobster, shrimps and water fleas have several pair of legs. Vertebrates. Vertebrate students are those animals who have backbone. So here we have the fish. Fish are vertebrates. Fish vertebrates हैं that live in water, जो पानी में रहते हैं। All fish breathe through gills. तमाम जो फिशेस हैं वो उनकी बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वी कॉल इट गिल्स, जिसके ज़रिए वो ब्रीथ करती हैं पानी के अंदर। मोस्ट फिश हैव ए स्किन कवर्ड विद स्केल्स, ज़्यादातर फिशेस जो हैं उनकी स्किन जो है वो कवर्ड होती है स्केल्स के साथ। नियरली ऑल फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम, और इनकी बॉडी में फिन्स मौजूद होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ग्रुप एम्फीबियन। An amphibian is a vertebrate that spends part of its life in water and part of its life on land. Amphibians ऐसे vertebrates हैं जो अपनी हाफ लाइफ या कुछ एक पार्ट लाइफ का पानी में गुजारते हैं और बाकी पार्ट लैंड पे गुजारते हैं। When amphibians are young, जब एम्फीबियंस यंग होते हैं, दे लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं, ब्रीथ थ्रू गिल्स, और गिल्स की तरह से ब्रीथिंग करते हैं एज इट इज प्रेजेंट इन द फिशेस, जैसे कि फिश में मौजूद होते हैं गिल्स। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे ये बड़े होते हैं, दे डेवलप लंग्स टू सर्वाइव ऑन लैंड, इनमें लंग्स डेवलप हो जाती हैं ताकि वो लैंड पे सर्वाइव कर सकें। A thick slimy substance called mucus protects the skin and helps to keep it moist. Amphibian eggs are called spawn. Amphibians के जो eggs होते हैं हम उनको spawn कहते हैं, spawn कहते हैं। Reptiles, lizards, snakes, crocodiles, alligators, turtle and tortoise are all reptiles. ये सब reptiles हैं। They have dry scaly skin and breathe through lungs. ये लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, इनकी स्किन जो है बहुत ड्राई और स्केली होती है। दे ले एग्स ऑन लैंड, और ये ज़मीन पे अपने अंडे देते हैं। द एग्स आर ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल्स व्हाइल अदर्स आर हार्ड लाइक बर्ड्स एग्स। नेक्स्ट वी हैव बर्ड्स। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फीदर्स। बर्ड्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें पर मौजूद होते हैं, इनके फीदर्स होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई, लेकिन इनमें से तमाम उड़ नहीं सकते। अ फ्लाइंग बर्ड कैन ट्रेवल फास्टर देन एनी अदर एनिमल। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, बर्ड्स भी सांस लंग्स के जरिए रहते हैं। ऑल बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, तमाम जितने भी बर्ड्स हैं वो अंडों से निकलते हैं। यूजली द फीमेल लेज हर एग्स इन अ नेस्ट। द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग बर्ड्स until they can look after themselves. Mammals, cats, dogs, goats, horses, monkeys, giraffe, elephants, whales and dolphins all are the mammals. ये तमाम mammals हैं। You are also a mammal. हम भी एक mammal हैं। Most mammals are covered with fur. ज़्यादातर mammals के ऊपर एक fur होती है, hair like structure होता है, ब्रिस्टल्स होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, मैमल्स भी लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। अ फीमेल मैमल गिव्स बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम ऑन मिल्क शी प्रोड्यूस हरसेल्फ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स। प्रीहिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स, मैनी ऑफ द एनिमल्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ऐसे एनिमल्स जो बहुत हजारों साल पहले रहते होते थे, दुनिया में मौजूद थे। वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, जो बाकी एनिमल्स से मुख्तलिफ थे। दैट लिव इन आवर वर्ल्ड टूडे। एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्शन, अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो द जाइंट रेप्टाइल्स डाइड आउट और बिकेम एक्सटिंक्ट, नापैद हो गए। बहुत हजारों साल पहले स्टूडेंट्स बहुत बड़े साइज के रेप्टाइल्स होते थे जो
अब इस दुनिया में नहीं है, एक्सटेंट है, नापैद है। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट, बहुत सारे साइंसदान ये हमें बताते हैं दैट द वर्ल्ड बिकम अ वेरी कोल्ड प्लेस, कि दुनिया बहुत ठंडी जगह थी अराउंड दिस टाइम। द जेंट रेप्टाइल्स डाइड, जिसकी वजह से बहुत सारे रेप्टाइल्स मर गए, बिकॉज दे वर टू बिग टू हाइबरनेट स्लीप इन विंटर, क्योंकि ये हाइबरनेट नहीं कर सकते थे विंटर पे, स्लीप नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत बड़े साइज के थे। एंड हैड नो फर, और उनके ऊपर कोई फर भी मौजूद नहीं थे, और फीदर्स, उनके कोई फीदर्स भी नहीं थे कि अपने आप को ढक सकें। To keep them warm, scientists know what they look like by examining fossils. साइंसदानों ने इनके फॉसिल्स की बाकियात को स्टडी करके इनके बारे में जाना है। What are the fossils? Skeletons or impressions formed by the crushed bodies of dead animals in very old rocks. Next students, we have the exercise of unit number 1. Topic is classification of living things. Question number 1, answer the following questions. Part A, classification of living things is necessary because the scientist can study them more easily to understand how all the different living things in the world fit into a pattern. Question number 1, part B. Biologists already know about more than 1 million different kinds of animals and more than 3,50,000 kinds of plants. Question number 1, part C. Once inside the cell, the virus uses the cell's materials to live and reproduce. It can make hundreds of copies of itself. Part D. Protists are small living things that cannot easily be classified as animals or plants. Part E. Euglena moves about in the water by a whip-like projection called a flagellum. Part F. Bacteria belong to the group Monera. Part G. The 4 main groups of plants are algae and fungi, mosses and liverworts, ferns, club mosses and horsetails, seed-bearing plants. Part H. Fungi are made up of thin threads called hive. Lichens are plants that consist of fungi and algae living together. Mosses and liverworts reproduce by spores formed in capsules. Question number 2, we have to fill all these names by telling their characteristics. Fish have backbone, fins, scales, lays, eggs and gills. Amphibians have big backbone, damp skin, lays eggs, gills and lungs. Reptiles have scales, lays eggs and lungs. Birds have backbone, lays eggs, feathers and lungs. Mammals have backbone, have live babies, hair, milk, glands and lungs. Next students, we have this table. You have to fill this table by writing the correct answer. Animal and plant. Fern is from Adiantum group. Mouse is from mammal group. Mushroom is from fungi group. Dolphin is from mammal group. Beetle is from insect group. Rose is from angiosperm group. Trout is from fish group. Snake is from reptile group. Earthworm is from segmented worm, which is a segmented worm. Seaweed is from algae group. Frog is from amphibian group. Amoeba is from protist group. Pine tree is from gymnosperm. Bacteria is from Monera. Robin is a group from bird. Moss is from algae and fungi. Octopus is from molluscs and starfish is from echinoderm. Question number 4, we have these organisms and you have to tell the characteristics of these organisms. Viruses are the simplest living organism. Protists cannot be classified as plant or animal. Bacterium, smallest living things, made up only one round elongated or spiral cell. Algae are green plant that usually live in water. Fungus are non-green plant made up of hive. Lichen consists of algae and fungi living together. Mosses are tiny pear-shaped capsules that contain spores. Ferns, their leaves are called fronds. Gymnosperms, seed-bearing non-flowering plant. Angiosperms, seed-bearing flowering plants. Question number 5, here we have the fill in the blanks. Number 1, sponge. Number 2, scrap. Number 3, starfish. Number 4, centipede.
Next, okay students, this is all for today. Thank you and Allah Hafiz.